फूड फ्रॉम गोवा के सारे टेस्ट का मैं मजा ले चुकी हूँ, बट आज के इस 100 आवर ट्रेल में होने वाला है असली फूड एडवेंचर, बिकॉज वी आर गोना एक्सप्लोर द डिलीशियस क्यूजीन फ्रॉम साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग अ कोट सेट बिकॉज मेरे को खाना पड़ेगा। आई हैव टू कीप रूम फॉर माय टमी टू एक्सप्लोर। तो फूड फ्रॉम अभी हम लोग निकल चुके हैं द्वारका से एंड वी आर ऑन वे टू आवर फर्स्ट स्पॉट फॉर ब्रेकफास्ट। आई कैन नॉट टेल यू द ग्रीनरी हैज माय होल हार्ट इन गोवा एंड द पीपल आर लाइक सच अ वाइब। कमेंट में बताओ ये बिल्डिंग का नाम क्या है। अभी हम लोग आए हैं मारगांव में अपना ब्रेकफास्ट करने। देखिए जो भी गोवा आते हैं वो सबसे पहले जाते हैं सी फूड खाने के लिए, बट मैं आज के इस एपिसोड में सी फूड नहीं कुछ क्लासिक लोकल ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ जो गोवन लोकल पीपल्स ईट। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ वन ऑफ आवर फेमस क्रिकेटर जिन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। चलो बिट्टू भैया से गेस करवाते हैं कौन है वो क्रिकेटर। बिट्टू भैया एक ऐसा क्रिकेटर वीडियो देख लिया। दिस इज कैफे टाटो फॉर यू व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1913। दिस इज ऑलमोस्ट 100+ year old, but देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है। The next generation has very well maintained and expanded the entire outlet. This has been the legendary, and when they started off with very classic, Goan breakfast like this puri sabzi and all, and later on they expanded to other cuisine as per the demand of the tourist and all. But I'm super excited to try this with puris which we have taken, and this is the sukhi bhaji which is basically aloo ki sabzi with dhania patta, mirchi, and I can see some mustard seed ka chalk and everything. And यहाँ पर we have got this alsande bhaji which is basically rajma ka sabzi. Looks good. And the very interesting thing which I got is banana puri. Like I mean maida ka puri I have ate, but banana puri in the morning I think it's very healthy and this is delicious also, and the color is yellow which is my favorite. So puri के साथ तो normal खाते हैं। Let's अच्छा इसको पूरी नहीं कहते, इसको बन कहते हैं। So I'll try this सब्जी विथ बनाना बन। ये बनाना से बनता है ना, ये वाला बन है ना। फिर इनके मेनू में बन लिखा होगा दैट दे हैव ओनली सिंगल बन हियर एंड विच इज बनाना बन। Let's dig in. So, oh my god, this is so good. I mean, this beans curry, this is spicy and very light and creamy. एकदम breakfast के हिसाब से एकदम sorted है. And this banana bun is doughy, flaky and sweet. It's amazing. This combination is light and flavorsome. I mean, I love this. Try this. Let's try sukhi bhaji with puri. It's more or like similar to our luchi aloo tarkari which our mom makes at home in Bengali families. So this exactly resonates to that dish. So yeah. वैसे ही खाने में लग रहा है। So I really want to say one thing कि आप कहीं पे भी चले जाओ, I think in India our पूड़ी, आलू, rice, दाल, चावल, अचार, it is something which you will find common everywhere except for the fact variations अलग अलग है, मसाले अलग है, cooking techniques अलग है, but the base is all same. It's fab. Normally I don't start off my day with all this, but I'm drinking Bonvita mug because वो मेरे को मेनू में कुछ different दिखा। Varun and all they are trying अदरक चाय, but यहाँ let's try Bonvita mug. It's full on nostalgia, full on nostalgia. फिर ज़्यादा दूध पी लूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गरम गरम अच्छा लग रहा है। बाहर वैसे भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो उस हिसाब से तो दिस फूड कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। कैसा लगा? I loved it, and I think Bittu and Varun are very happy because of the reason I gave them this breakfast which they usually love eating. पूरी सब्जी नहीं खाता पता। तो पूरी सब्जी नहीं खाता? तो क्या खाता है? मैंने कब बोला मेरा? ओ तुम क्रोसॉ खाता है, क्रोसॉ और कॉफी पीता है। वो व्यक्ति के पूरी सब्जी और चाय खाए। नहीं वो पूरी सब्जी मांगता, ब्रेड नहीं खाता है। So this was our bill at Cafe Tatto and now let's head towards another. अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं खाना खाने और यहाँ पर इन लोगों का फोटो सेशन हो रहा है। My next spot is another iconic food spot which is Longinews. Now this was established in 1950 and कहते हैं मरगांव एरिया में this was the first casual establishment जहाँ लोग आते थे। Conversation used to take place. This place is quite iconic और कहते हैं जिनका पहले relationship हुआ करता था they used to date here. They got married, now they bring their children. So this is basically like a nostalgia eating spot where conversation and love takes place. So yeah, let's go and we're gonna be eating some Goan Catholic breakfast up here and I'm super excited. Come. और ये स्टफ्ड क्रैब जीजी, ये एक इसमें क्या मिलेगा अभी? नहीं क्रैब सीजी, ये वाला ग्रेवी है, क्रैब का ग्रेवी। सो दिस प्लेस हैज अ वेरी नाइस विंटेजी वाइब्स, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द एल्डरलीज आर सिटिंग एंड एंजॉयिंग देयर फूड एंड ब्रेकफास्ट एंड जैसे कि मैंने सुना है कि दिस प्लेस इज वेरी वेल नोन फॉर द कॉन्वर्सेशन ओवर ड्रिंक्स एंड ऑल। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई वन ड्रिंक। यहाँ पे मैंने लिया है उराक विच उसके साथ आई विल बी ट्राइंग लिम्का। आई एम ड्रिंकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो आई एम नॉट गोना ऐड मच, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ले रही हूँ विथ लिम्का। इसमें आप चिलीज भी ऐड करके खा सकते हो, टेस्ट गुड। सो या सो लेट्स चीयर्स। ओके दिस टेस्ट लिटरली द स्मेल इज ऑफ like a fermented drink
पीने से ये थोड़ा सा कैसे बताऊँ, बट आफ्टर टेस्ट इज स्मोकी, शार्प, एसिडिक। इसके अलावा आई हैव ऑर्डर्ड अ गोवन pork sausage and eating Goan sausage with a bread and gonna stuff the pork sausage in this. So this is basically chorizo. So this is a very crucial part of the Catholic cuisine in Goa. Catholic food is very much influenced by use of vinegar. वहीं पर Goan Hindu people use imli for sourness. So pork sausage is made with vinegar, chilies, garlic and smoked to perfection. So this looks very good to me and yeah. ऐसे खाने से पहले let's dig in now. And wow, spicy. You look the influence of chilies with the color red, and it's spicy. It's oily. It's beautiful in taste. It's tangy. There's a very nice, delicious sourness to it. I'm getting bits and pieces of chili seeds. उसके वजह से the spiciness is hitting more hard. And with the simple bread ना, उसका टेस्ट और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है. I just love this. I love this. वह मैंने लास्ट एपिसोड में भी खाया था सांजा फेस्टिवल में. And this was fab. ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता लगता है कि यहाँ का लोकल ड्रिंक पी के मेरे को नशा होगा कि नहीं पता नहीं, बट मेरे को यहाँ का खाना खा के ज़रूर हो जाएगा. एंड ऑल्सो हैव ऑर्डर्ड अ स्टफ्ड क्रैब. सो या दिस इज बेसिकली 2 पीस ऑफ क्रैब विच इज़ वेल स्टफ्ड एंड ऊपर से इन्होंने चीज़ डाला हुआ है. यहाँ पर एक सैलेड दिया हुआ है. सो लेट्स सी ये इनका प्रिपरेशन कैसा है. आई एम फीलिंग जैसे मैंने स्टफ्ड क्रैब खाया हुआ है कोलकाता में, बट दैट्स वेरी कॉन्टिनेंटल स्टाइल. बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड विद चीज़ होता है. ये मेरे को देख के लग रहा है जैसे हाफ कुक्ड है, जैसे क्रैब मीट को फुल्ली कुक नहीं किया हुआ है, वो थोड़ा सा रॉ रखा हुआ है. सो लेट्स टेक इट विद द सैलेड ऑल्सो. नाउ लेट्स टेक इट. It's sweet. How do I explain you? Like the taste is milky and sweet. It's different. It's nice. I think the crab meat तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसके अंदर onion का taste बहुत ज़्यादा आ रहा है. It's made with garlic, onion and crab meat and cheese. It's good. And normal seasoning with salt, pepper. So it's kind of good. Oh, I can see some chilies. Chilies भी डाला हुआ है for this spice kick. It's good. Oh, cheese की वजह से taste बहुत अच्छा लग रहा है. It's a good snacks. Or you can call it as a starter, which will accompany very well with the local drinks here. और जब मैं अंदर से स्कूप करके खा रही हूँ ना, तो मेरे को वो क्रैब का जो टेस्ट होता है ना, सी फूड का जो टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा आ रहा है. द फ्लेवर्स ऑफ शेल एंड ऑल, वेरी नाइस. नाउ हियर इट कम्स द पोर्टुगीज सॉडस्ट पुडिंग, सेरादूरा. बेबिंका तो है ही, ऑल ओवर बेबिंका, बट सेरादूरा भी मैं पढ़ रही थी. So I was very excited to try this because मैं इसके बारे में पढ़ रही थी. It's nice. Basically a layer of cream, Mary biscuit dust, फिर cream, फिर Mary biscuit dust and then cream. So it's chilled. Let's dig in. And ऊपर भी Mary biscuit का dust डाला हुआ है. The cream is not normal cream. It's like an ice cream cream. Very nice. It's creamy and powderish. और ये इसमें थोड़ा सा gelatin भी डाला होगा थोड़ा सा, इसलिए इतना solid form हो गया. Normally cream इतना solidify नहीं होता है. This is not too sweet. It's like subtly sweet. Very nice. So this is my bill at this place and I paid 1036 for this much. आप लोग हमेशा बोलते हो मैं आप लोगों को प्राइस नहीं बताती हूँ. ये देख लीजिए, सबका कॉस्ट इंडिविजुअली बाइफिकेटेड है. Let's go to next. Honestly, this is so good, like so good. बहुत ही ज़्यादा वेव है. मस्त है. जब आएगा ना पीछे हो जाना क्योंकि वो टांगेगा फिर. डर क्यों रही है? तुम भाग क्यों रहे तुम लोग? We have come to Kalingut beach. यहाँ पर the vibe is very good. However, waves बहुत high था. तो जब बीच पे है तो आपको क्या खाना है? चाट चट्टम खाना है. So I took some puchka here, pani puri, and these are some puris with some sev and all classic pani puri. And let's dig into the water and cheers. स्पाइसी. बट हम है कहाँ है गोवा. तो गोवा में हम पुचका कैसे खाएंगे? तो दिस इज वन ड्रिंक विच आई सॉ एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस. जैक डैनियल विद कोका कोला. ये मेरे को बहुत टाइम से पीना था. आई डोंट वांट टू डू दिस, बट व्हेन इन गोवा आई हैव टू ट्राई दिस फ्यूजन. आई विल बी ट्राइंग दिस फ्यूजन. बस दिस इज टू मच. आप कमेंट करके बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है. तो मैगी बन रहा उसमें भी डलवा दे. ना नेवर. फूड फैम बीच पे जब होगे तो मैगी खाना तो बनता है. मैगी इज नॉट मैंडेटरी फॉर पहाड़ ओनली. मैगी इज फॉर बीच ऑल्सो. तो या आई हैव टेकन अंडा वेज मैगी. लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस. और वेदर इतना अच्छा है ना, दिस वाज मच नीडेड. क्या टेस्टी बनाया, चटपटा. विच प्लेस? राजास कोल्ड ड्रिंक शॉप. यहाँ मोमो, पुचका, बेलमुड़ी सब मिलेगा. बहुत टेस्टी है मैगी. ओके सो अभी हम लोग बागा बीच आए हुए हैं एंड आई एम ट्राइंग सम मैंगो, ड्राई मैंगो. और ये खा रहा है वाटरमेलन खा रहा है. वाटरमेलन बहुत अच्छा हवा दे रहा है. बहुत अच्छा हवा दे रहा है. लेट्स गो.
फूड फैम मेरे को जुम्मा 4 दिन हुआ गोवा में एंड आई एम हियर एट अंजुमा एंड व्हेन इन अंजुमा यू हैव टू ट्राई बर्गर फैक्ट्री एट फर्स्ट प्लेस। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोग बोल रहे हो, आप लोग ने कहा है आई हैव टू मस्ट ट्राई बर्गर फैक्ट्री। सो आई एम हियर ट्राइंग आउट बर्गर एट बर्गर फैक्ट्री। आई एम लाइक इतना क्रेज किस चीज का है, लेट मी सी। यहाँ पर आई हैव गॉट दिस बर्गर व्हिच इज पार्मेजान avocado chicken bacon burger. So basically it's a chicken burger with parmesan cheese, avocado smashed and some crispy bacon. जिसमें से मैंने हाफ स्लाइस कराया, एक हाफ पोर्शन विदाउट बेकन कराया और हाफ पोर्शन में बेकन डलवा दिया। So this is my side of the burger. This looks amazing. Let's dig in. Wow, it looks very good, very good. इसके साथ we have got some potato fries, wedges, very thinly sliced. Let's take it with the dip they have given. ये एक मेयो दिया इन्होंने. Very nice. Let's try. नॉर्मली चिकन पैटी क्या बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होता है, जितना भी रेड मीट का पैटी होता है ना वो बहुत जूसी होता है, बट दिस इज फॉर अ चेंज वेरी गुड। ऑब्वियसली द टेस्ट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द इंग्रेडिएंट्स लाइक एवोकाडो व्हिच इज क्रीमी, बेकन इज जूसी एंड इन्होंने बहुत अच्छे से सैलेड वैलेड दिया हुआ, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स टेस्टी। आई एम हियर टू ट्राई आउट अ लॉट ऑफ फूड बट दिस इज फॉर 550 रुपीज वन बर्गर एंड आई थिंक द पोर्शन इज गुड फॉर वन पर्सन और एक इंसान आराम से एक बर्गर खा सकता है। द बन इज वेरी लाइट एंड वेरी नाइस, फ्रेश, चुई नहीं है, इट्स परफेक्ट। योर सजेशन रियली हिट्स डिलीशियसली। फूड फैम आपने फैट फिश खाने बोला था, मैं इस तरफ आई हूँ बट मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। इस बार मैं नेक्स्ट टाइम पक्का प्रॉमिस खाऊंगी, इस बार नहीं होगा। अंजना में घूमते घूमते हम पहुंच गए फूड कार्ट में एंड दिस इज योर आफ्टर पार्टी स्पॉट। इट कैन बी योर आफ्टर, आई थिंक इट इज योर आफ्टर पार्टी स्पॉट बिकॉज देयर आर पीपल स्टैंडिंग इन लाइन ईटिंग दिस पोई, अमेजिंग पोई ब्रेड बर्गर, पोई बर्गर पार्टी ड्रेसेस में। सो इफ यू आर पार्टिंग अराउंड बागा बीच, इफ यू आर पार्टिंग अराउंड कैलंगट बीच, if you are partying around at Tito's Lane or if you are partying around Anjum or somewhere, you should definitely give this place a try because यहाँ पर आज तो उतने फूड ट्रक नहीं है बट मैंने ऐसा सुना है यहाँ पर बहुत ज्यादा फूड ट्रक होते हैं सीजन में। इनके पास चोरिजो भी है, चोरिजो बन like that Goan pork sausage stuffed in this poi bread and all, that's love, but I have had that so I'm not eating that. I'm eating this kafrial with poi. Wow, this is so well stuffed and lot of spices and everything and ये बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का होता है and all। इसको क्या काफरियल का उस सॉस में डाल के चिकन को टॉस किया हुआ है एंड देन मिक्स करके इसके अंदर डाला हुआ है पोई ब्रेड के अंदर एंड ऊपर से कुछ क्रीम सॉस डाला हुआ है। सो नाउ लेट्स डिग इन। द पोई ब्रेड लुक्स गुड टू मी। हाँ, आई लव दिस, आई रियली लव द टेक्सचर ऑफ द ब्रेड। माय गॉड ब्रो, दिस इज सो गुड। ये फर्स्ट पोई ब्रेड है जो इतना सॉफ्ट मुझे मिला है। इससे पहले मैंने जहाँ पर भी पोई ब्रेड खाया थोड़ा सा ऐसा था बट दिस इज सो गुड। इट्स वार्म ऑब्वियसली, अभी जस्ट बन के आया है। द पोई ब्रेड इज सॉफ्ट, द चिकन इज सो वेल मैरिनेटेड एंड कुक्ड, सॉफ्ट है। अंदर ये कैबेज और जो सॉस दिया हुआ है उसकी वजह से क्रीमी। हाउएवर अगर वो नहीं भी डालती ना वो सॉस ऊपर से तब भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज द कैफरियल सॉस हैज अ मैजिकल टेस्ट। अब आप गोवा में हैं तो डेफिनेटली आप ढेर सारा पियेंगे, पीजिए, सेफली पीजिए, खुलेआम पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई दिस कोकम ड्रिंक। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, नॉट बिकॉज दिस इज हेल्थ बेनिफिट्स बट आई लव द टेस्ट सो मच। दिस इज सो रिफ्रेशिंग इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग दिस लेट एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, यू कैन ड्रिंक एनी टाइम बट दिस इज वेरी गुड। अभी हमने यहाँ खा लिया, इसके ठीक अपोजिट में there is a small cart wherein a Goan lady is selling some amazing classic Goan traditional food, street food, and वहाँ पर I'm gonna be trying Ross omelette. And जब मैंने घर पे Goan food बनाया था तो Ross omelette was the first dish which I made. हमने साकुटी खा लिया है, but let's now try an omelette with sakuti gravy. समथिंग विच आई वांटेड टू ईट और इसके साथ आपको 2 पोई ब्रेड और सैलेड मिलेगा एंड यहाँ पे मैंने ये एंड नींबू अगर चाहिए तो ले लीजिएगा। दिस इज ऑमलेट एंड उसके ऊपर यू कैन सी सच अमेजिंग शाकुटी ग्रेवी एंड ग्रेवी के अंदर ये बिट्स एंड पीसेस ऑफ चिकन। दिस लुक सुपर स्क्रम्शियसली डिलीशियस। सो द वे हाउ डू यू ईट दिस, यू टेक द पोई, आई ईट दिस वे, यू कैन ईट योर वे एंड आप इस तरह से भी खा सकते हैं इसको, यू नो, रोटी एंड उसके जरा, बट आई लव टू ईट इन दिस वे। इससे सारे फ्लेवर्स क्या आपको एक साथ मिलते हैं। सो इट्स अ सिंपल क्लासिक ऑमलेट बट जो टेस्ट एलिवेट होता है ना वो बिकॉज ऑफ शाकुटी ग्रेवी। तो बेसिकली ये आया कैसे था कि शाकुटी इज अ वेरी फेमस गोवन ग्रेवी। अब शाकुटी की ग्रेवी बच गई तो क्या करेंगे, दूसरा दिन ऑमलेट में ब्रेकफास्ट में वो ग्रेवी डाल के खा लेते हैं एंड जितना वो शाकुटी की ग्रेवी रात भर जब रहती है और बासी हो जाए ना तो उसका टेस्ट और ज्यादा एलिवेट होता है बिकॉज ऑफ एडेड पॉपी सीड्स एंड कोकोनट। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है व्हिच इन्फ्लुएंसेस द डिश। इसके ऊपर आप डाल दो थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा स्क्वीज ऑफ लेमन जूस। ओह लवली लवली लवली। आई टेक बिट मोर ग्रेवी बिकॉज आई लव माय पोई ब्रेड टू बी
moist. आपको जरूरत नहीं है कि you have to eat with poi bread. You can eat it normally roast omelette, but yeah, cheers to roast omelette in Goa. This is the best. The best. The anda is tasting so good. I can't tell you. The gravy is so good. Lemon juice की वजह से डिश का टेस्ट और एलिवेट हो गया है. This is so tasty, bro. नारियल का कितना सटल टेस्ट आ रहा है. Fab. When in Goa, कुछ खाओ या ना खाओ, ये जरूर खाओ. एंड ये पता आपको सबसे ज्यादा इसका टेस्ट कब आएगा? आप रोड साइड कार्ट में स्ट्रीट स्टाइल में खाओगे ना, लोकल्स के पास, वहाँ जो ये टेस्ट आएगा ना, ये आई डोंट थिंक सो इतना रेस्टोरेंट वगैरह में उतना अच्छा टेस्ट आएगा. परफेक्ट टू किक स्टार्ट योर डे विथ रॉस ऑमलेट एंड परफेक्ट टू एंड योर मस्त पार्टी वाला डे विथ रॉस ऑमलेट. कैसा लगा? कैसा लगा? टेस्टी टेस्टी. देखिए सब खाना चलता है लेकिन डेजर्ट्स एट नाइट हिट्स रियली डिफरेंट. सो आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड Bacchus. Abacus States Bacchus is quite popular at Anjuna, especially for party people, and this is open till 5 AM in the morning. और इसके पास ही Butterfly Beach and all है. Butterfly Beach and all है. That is must visit. हम होगा तो कल आएंगे, पर यहाँ पे मैंने 4-5 किस्म के डेजर्ट लिए. This is one dessert which I took. अभी मेरे को इसका नाम नहीं पता, बट ये यहाँ पर इनके डेजर्ट्स बहुत डेलिकेट है, बहुत ही ज्यादा ड्रूलिंग है, बहुत ड्रूलिंग. दिस इज सम चॉकलेट डेजर्ट एंड इसको देख के लग रहा है द क्वालिटी ऑफ चॉकलेट इज सो गुड. सो लेट्स डिग इन. दिस इज सो गुड. मैंने एक आलमंड एप्पल पाई भी लिया हुआ है. दैट इज ऑल्सो टेस्टी. लॉट ऑफ डिलीशियस डेजर्ट्स दे हैव. डेफिनेटली इफ यू आर अ डेजर्ट लवर मोर देन मी, देन यू शुड गिव दिस प्लेस अ ट्राई. ट्राई एक बाइट. आई लव दिस. Hi food fam, this is another day, basically our third day or fourth day. The weather is so good in Goa. अभी जितना दिन का भी स्टे में हमारे गोवा में ऐसा बारिश नहीं हुआ कि हम लोग कहीं स्टक हो गए और something like that. It's so pleasure. It's like welcoming. It's like so good. If I can actually show you the view. Wait. वैसे मैं आपको व्यू ऐसे अपने फोन के कैमरा से नहीं दिखा देती बिकॉज आंखों में मैं जो देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. दिस इज द ब्रिज हम हमेशा क्रॉस करते हैं. Wow, lovely weather, bro. Lovely. Bro, माहौली बेबी. वो बिट्टू कितना अच्छा लग रहा है आज. बिट्टू आज बहुत अच्छा लग रहा है. क्या बात कर रही है? आज ले जाऊंगा ना बहू. अभी वी आर ऑन वे टू क्या है विलेज का? मजोरदा विलेज. एंड वैसे तो मैं देख नहीं पाऊंगी. आई नो ब्रेड मेकिंग बिकॉज ऑफ द रीजन वो बंद हो जाता, बट आई रियली वांट टू गो टू दैट विलेज. थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल है. आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है. सो नेचुरल सिरन. नाउ मजोरदा इज अ विलेज. अगर आप चाहो तो आइटिनरी में डाल सकते हो. आई हैव कम हियर बिकॉज दिस इज द विलेज. जो गोवा का जो फेमस पाव पोई ब्रेड है वो इसी विलेज में बनता था. एंड अभी भी वो 500 साल पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ फॉलो किया जाता है, विच इज मेकिंग पोई ब्रेड विद द यूज ऑफ टोडी. यहाँ पर अगर आप चाहो तो यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मेकिंग पोई. यू कैन मेक पोई, इंडल्ज इन सम डिलीशियस fresh poi breads there. आज है Friday when Godino's bakery is closed. However, मैं यहाँ पर बस एक्सपीरियंस करने आई थी यहाँ पर because my people जो मेरे साथ ये लोग हैं इनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि मेरे साथ बैठ के आधा दिन पूरा दे गोदिनोस बेकरी में पोई बनाते नहीं देगा. बनाने देगा तो मैं कर दूंगा. So अभी हम लोग इतना दूर आए हैं तो मैंने सोचा इन लोगों को कुछ मंच करा देते. तो यहाँ पर एक मास्टर शेफ कैफे बेकरी है. यहाँ पर हम थोड़ा चाय कॉफी वगैरह पी लेंगे. एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आप चाहो तो आइटनरी में ऐड कर सकते हैं. आई एडेड इट एंड आई loved it. If you are ever coming to this side, definitely try the garlic chicken. ये अभी जो पहले खाया बहुत टेस्टी था. बिट्टू बोला लंदन चिकन पफ. एक ऐसा सॉसेज दिया हुआ है. वेरी नाइस. तो हम आ चुके हैं अभी एडवेंचर करने मजोदर में, बारिश में भीगने. मजोदर नहीं मजोरदा. सॉरी मजोदर. अरे समझ गए ना, मतलब बहुत देर से गाड़ी में बैठे थे. क्या ही होगा, बारिश ही तो है. कौन सा गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, मर जाएंगे. चलो. This is the Mud railway station, which is so beautiful. So beautiful. I love this. I love this one so much. This is so good. So I'm staying at Varka. तो मैं जा ही रही थी और मेरे को ये चोरीस पाव कहीं मिला नहीं. तो मेरे को ये चोरीस जो दिखा, मेरे को बिट्टू को दिखाना था. What is it? These are the local traditional Goan sausage. You can see this one. But यहाँ पर मिलेगा नहीं. But luckily the shop owner was so kind. She told me that she has one pav. I think उनका breakfast या lunch का होगा. Which she is sharing with me, and she has some boiled chorizo. So I'm just gonna add in and stuff it because I want to experience this. The best part about this place, this is not only sausages, but you also get different cuts of pork, as you can see. और सारा रेट चार्ट्स दिया हुआ है. And ये just क्लब महिंद्रा वर्का के पास में ही है. How much for this? For this
is so good. This is so good. She's so kind, yaar. This is so good. So this is the pav she has. She is sharing this with me, and this is the boiled chorizo inside. Lovely, lovely. I'm super excited to try this. Wow, the flavors are so good. This is so good. This is so good. इसमें ना अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. From South Goa to North Goa, I'm trying to cover all the places suggested by you people, and today is my last day in Goa, so I'll try to come once again. But yeah, I'm super thankful to this place and to her for offering me this, and I'm so thankful. This is so good. She was a really kind lady. Must visit this Dominic Meat Center. Very nice. ये मैंने एक प्राची के लिए लिया. I don't know she'll eat it or not सुबह. But yeah, let's see. मैं ना वो चोरीजो दिखाने गई थी, and वो मेरे को ये वाला पाव वाला खाना था, and वो लोग सिर्फ बेचता है मीट, रॉ मीट, सॉसेज, उसके पास कुछ बॉयल था, अपना लिए थोड़ा सा रखा होगा खाने के लिए, और ये ब्रेड उसके खुद का था. तो उसकी मम्मी वाज लाइक, बिकॉज हम लोग इतना पूछ रहे थे, बिट्टू को बता दियो, एंड दे वर लाइक, मेरे पास एक पाव है, ये आपको पाव कहीं नहीं मिलेगा, आपको पाव अलग, चोरीजो अलग मिलेगा, बट मैं आपको बना के दे सकती हूँ. शी गिव मी दिस, बट उसके साथ सॉसेज के साथ खाना. पाव इस थोड़ा टाइट, गरम नहीं किया ना, क्योंकि उसका दुकान में तो एक आंटी आके पूछ रही है, तुम ये कब से बेचने लगी? तो बोले नहीं वो उन लोगों को खाना था, उसकी मम्मी ने बोला बना के दी. मेरे को फोर्ट में फर्स्ट टाइम आके बहुत अच्छा लग रहा है. गैस करो भाई, इससे पहले हम जितने भी फोर्ट में गए हैं, आज बारिश. इससे पहले तूने कोई मतलब आइलैंड वाला फोर्ट में नहीं आई है ना? हाँ, शहरों वाला फोर्ट में गई. जो भी है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा वेदर है. हम आए हैं अगोड़ा फोर्ट, नहीं अगोड़ा, हाँ, कैंडलिम बीच के पास है. क्या क्या है अंदर? इधर आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा. कैसा था वॉशरूम? सफा. ओके फूड फैम, तो देखो ये फोर्ट तो है बहुत ही ज्यादा सुंदर. गोवा आ रहे हो तो कल्चर क्यूजीन के बाद फोर्ट चले आना, बीचेस चले जाना, चर्चेस चले जाना, टेम्पल्स चले जाना. मैंने भी सब कुछ कवर किया है. हाउएवर एंगल्स हर जगह सेम है, लेकिन कोई वहाँ फोटो खींच रहा है, कोई वहाँ फोटो खींच रहा है, कोई भी वहाँ फोटो खींच रहा है, तो फोटो खिंचवा लेना. लेकिन हाँ, दिस इज वेरी serene एंड ब्यूटीफुल आई फील. ओके फूड फैम, यहाँ आते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे. यहाँ पार्किंग के पास सब चाहो तो यहाँ से ये वड़ा पाव खा सकते हो. वड़ा पाव खाना होगा तो मैं बॉम्बे जाऊंगी ना, बॉम्बे जाके वड़ा पाव खाऊंगी. आई गॉट माय मैगी. दिस इज मसालेदार. यहाँ पे मैंने लास्ट डे भी मैगी खाया था. इट वाज सो मसालेदार, सो यम्मी, आई कैन नॉट टेल यू. दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल मैगी. इसमें इन्होंने कैप्सिकम, टमाटर मसाला सब डाल दिया है. वेरी टेस्टी यार, लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस. बाहर अमेजिंग व्यू, बारिश, मैगी, वड़ा पाव. व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ डूड? और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए? वड़ा पाव चाहिए मेरे को. लीजिए. मैगी क्या बनाया यार, मसाला डाल के मस्त मैगी बनाया बे. नाउ व्हेन इन गोवा यू हैव टू mark your visit to all the oldest taverns and bars. Place is very rustic in old and nostalgia, with some sitting bench kind of seats, and you'll see elderly people and the locals sipping on some local drinks and normal alcohol beverages and stuff like that. यहाँ पर बहुत सारा है, शिफा बार, सनशाइन बार. ऐसे तो गोवा में बहुत सारे बार है, एंड द फर्स्ट tavern bar and the oldest bar of Goa is Joseph's bar, जो एकदम पास में. अभी फिलहाल मैं हूँ सनशाइन बार एंड रेस्टोरेंट में. मैं जोसेफ्स गई थी, बट द क्राउड was very touristy, but I am here at the Sunshine Bar because ये बहुत cozy, comfortable space है. and यहाँ पर उराक एंड फेनी मिल रहा है, एंड फेनी भी यहाँ पर कोकम फेनी है. I mean like this is so nice. आपको काजू फेनी भी मिल जाएगा. there are types of फेनी, but ये I have ordered कोकम फेनी with पुदीना, lemon juice and chili and lemon, and this is the उराक जो मैंने पिया था वहाँ पर with लिम्का. इसको मैंने लिम्का से बनवाया है. उराक मैंने पिया था लुइंग्विस में. so सबसे पहले I'll try the फेनी. wow, this tastes so good. this is so tasty. चिलीज खाने का होता है. आई डोंट नो. सी मुझे जोसेफ बार का वाइब थोड़ा कम पसंद आया. मे बी बिकॉज आई एम नॉट विद द राइट पीपल. वी आर नॉट अ पार्टीहॉलिक पीपल काइंड ऑफ स्टफ शायद. बट शॉर्ट लैंग्वेज में वो भी जेंजी. हाँ, जेंजी में कन्वर्ट हो गया शॉर्ट लैंग्वेज में. मेरे को वो नॉस्टैल्जिया फील नहीं आ रहा है, और मेरे को उतना समझ में नहीं आया. बस लिखा भी नहीं था कहीं कि ये सब अवेलेबल है. हाँ ट्रू. लेट्स ट्राई द उराक विथ लिम्का. ओह, हमने लास्ट डे उराक पिए थे क्या उसके पास? ये एकदम डिफरेंट है. इसमें एकदम चिलीज का स्मेल आया, बहुत मस्त वाला. आई लाइक दिस. हाँ, जोसेफ बार में 18 प्लस अलाउड 18 प्लस भी अलाउड नहीं है. अंडर 18 भी अलाउड नहीं है. 18 प्लस पेट भी अलाउड नहीं है. अंडर 18 भी अलाउड नहीं.
बहुत restriction है and the place was very packed up with Gen Z crowd as Bitut Bhaiya told. So I did not like the vibe much. हाँ, but कोई गोवन अगर मेरे को उधर ले जाओ तो स्टोरी बताए, गाना सुनाए, खाना पिलाए, खिलाए पिलाए तो शायद मैं चली जाऊँ, मेरा माइंड चेंज हो जाए. बट फिलहाल खुद से अकेले आई हूँ तो मेरे को उतना पसंद नहीं है. बट आई हरेली एंजॉयड सनशाइन बार में फैनी एनोराग. यहाँ बिट्टू को पता नहीं क्यों क्या हो गया, गोवा जब से आया तब से उसको स्क्विड खाना है, स्क्विड खाना है, स्क्विड खाना है. So we got him some rava squid fry. कैसा लग रहा है? मैं बोल सकते अपना देसी कैलेमरी. हाँ, very nice. Honestly, let's squeeze on some lemon juice on top. This rava squid fry is very very tasty. थोड़ा मिर्ची डालते हैं इसमें. Very nice. This is so good यार. मतलब पैनको की जगह सेमोलिना, like सेमोलिना मतलब सूजी. Fab. Honestly, I would love to say that this is basically my last day, last night in Goa, and I think my decision was very right to come at Sunshine Bar and Restaurant. Trust me when I say this, wherever you are coming to this place, do try the Feni Urak definitely. But the Rava squid fry is a must try. It's so good. अभी भी मेरे मुंह में है, मैं और खाती, लेकिन मेरे को और एक जगह जाना है खाने के लिए. Otherwise, I would have sat here and ate more seafood items. But whenever you are here for the next time, definitely give this place a try. It's must.